are delighted to announce that our esteemed chief guests have arrived. I request you all to please rise and join me in giving a warm and thunderous round of applause as we welcome Miss Dr. Kiran Bedi ma'am and Miss Saina Nehwal ma'am. Please give a warm and thunderous round of applause as we welcome Dr. Kiran Bedi ma'am and Mrs. Saina Nehwal ma'am. We are privileged to have both of these extraordinary women with us today as they continue to inspire and motivate generations. Today marks a proud moment for the Indian Talent Olympiad as we gather to celebrate the unwavering dedication, exceptional leadership and remarkable achievements of some of the finest educators in the country. It is indeed an honor to witness the presence of such great personalities and educationists. To commence this auspicious event, I would like to invite the directors of the Indian Talent Olympiad to take the stage and please welcome. Thank you everyone for coming today for the very lifetime memorable moment, and we are personally also happy because to invite both of the legends and the well-known national icons. So we are also more excited, and since there is no need of introduction of Kiran Bedi madam as well as Saina Nehwal madam. They are already more than me. Everybody know about their services and their what they are doing, and the social reforms and sports, whatever they have done for the country, everything everybody know. So we think now, considering a lot of crowd and what we thought is the excitement. We will go with the excitement what everybody wants now. We will go first with the photo sessions, then the interaction, whatever you want to talk to madam, interact, and there is some motivation, whatever you want to get it from madam. There is that we can keep it in the last step. Respected dignitaries of the dais, Kiran ma'am, and all the principals here. I think आज का दिन बहुत ही स्पेशल है. आप लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, इसलिए हमें मिलते हैं अवार्ड्स. अच्छा लग रहा है आपको मिलकर. ये दिखाता है कि स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप सब लोग बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं. एंड स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो आई कैन ओनली से दैट एज ए स्पोर्ट्स जो भी कोई बच्चा खेलना चाहे, कोई भी स्पोर्ट हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट किड प्ले सम काइंड ऑफ स्पोर्ट, क्योंकि वो नेचुरली मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं एंड देन पढ़ाई भी और इजी लगता है. आई एम टेलिंग इट विद माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले तो ऑब्वियसली सीरियसली नहीं लेती थी मैं स्पोर्ट को. पापा साइंटिस्ट है तो लगता था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो मैं खेलती थी, बट आई शुड प्ले फॉर 7-8 आवर्स, एंड उसके बाद लगता था थोड़ा बहुत जो टाइम है वो पढ़ाई कर लूँ. और 5th से 10th तक मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच गई थी. और एट द सेम टाइम थैंक गॉड फेल नहीं हुई, क्योंकि 5 ही दिन स्कूल गई थी. 5th to 10th, you won't believe I just went 5 to 6 days. The teachers were so happy and they were appreciating it. They were like, साइना तो अच्छा पढ़ाई भी कर लेती है, एट द सेम टाइम आप स्टेट के लिए, कंट्री के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे 2-3 पीरियड ऑफ भी दे देते थे वो. Just go and practice. We are all with you. So I would like to thank Bharti Vidya Bhavans, जो हैदराबाद में है. उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया मुझे, एंड थैंक यू सो मच. एंड ऑब्वियसली आप लोग तो है ही सबसे बड़े गुरु बच्चों के, एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी बहुत ही बड़े गुरु होते हैं बच्चों के, क्योंकि स्कूल के बाद जो उनके गुरु घर पे हैं वो है उनके पेरेंट्स, और जो उनको वो सिखाते हैं उससे बड़ी सीख कोई हो ही नहीं सकती है. आप लोग पढ़ाई तक
बहुत अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं, बट उसके बाद जो लाइफ की लर्निंग रहती है वो सबसे बड़ा चैंपियन बनाता है आपको। क्योंकि लाइफ की जो लर्निंग रहती है ना, वो पढ़ाई जो होती है उससे बहुत डिफरेंट रहती है। जैसे कैसे आपको बिहेव करना चाहिए सबके साथ, वो भी एक नॉलेज होती है जो मिसिंग होती है कभी कभी। आजकल के बच्चे ना, मुझे लगता है पढ़ाई में तो बेस्ट ही है, बट मुझे लगता है दूसरी चीजें भूल जाते हैं, फोन पे रहते हैं फुल टाइम, दूसरी चीजें भूल जाते हैं। तो आई थिंक जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे दे प्ले अ बिग रोल। फोन शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। आप लगा लीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, 2 घंटा ले लीजिए, बट उसके बाद उनको मेक श्योर जो दूसरी चीजें हैं उसका पूरा ज्ञान जो है वो पेरेंट्स दे सकते हैं, चाहे वो फैमिली जो लाइफ के बारे में हो, चाहे वो कैसे बेस्ट बनना है। बिकॉज इनिशियली व्हेन आई वाज ओनली 9 आई यूज्ड टू थिंक पापा बोल रहे हैं डॉक्टर बनो, मम्मी बोल रही है स्पोर्ट्स पर्सन बनो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज टेलिंग मी तुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है, एंड आई वाज ओनली 9। तो 9 साल का बच्चा क्या करेगा, सिर्फ हंस के छोड़ देगा कि मम्मी का ड्रीम ऐसा है। जो बैडमिंटन में यू ओनली यूज्ड टू हैव चाइना, कोरिया, जापान, इतने सारे कंट्रीज हैं जो हमेशा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज यही लेके आते हैं, एंड शी इज एक्सपेक्टिंग कि हम इंडिया से कोई एक ओलंपिक मेडल लेके आएगा इनके बीच में। आई शुड नॉट बिलीव इट। और स्पेशली गर्ल्स में तो कोई था भी नहीं मुझसे पहले जो एक्चुअली फर्स्ट सेकंड राउंड भी क्रॉस कर सकता था वो लेवल पे। बट इमेजिन हाउसवाइफ है मेरी मम्मी, और उनका एक ड्रीम था कि मेरा बच्चा अच्छा करे, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बने, वर्ल्ड नंबर 1 बने। तो मैं ये बोलती हूँ कि किसी में भी बिलीफ होना, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सबकी बातें जरूर सुनिए, सब में कोई सीख होती है। एंड दैट्स व्हाट माय मॉम बिलीव कि मैं स्पोर्ट्स पसंद करती हूँ, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स पसंद ही बनेगा। पापा से लड़ती थी तो मम्मी के आगे पापा की क्या चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। एंड दैट्स हाउ ही वाज आल्सो, लकीली ही लव्स हॉकी। पापा को हॉकी देखना बहुत पसंद है, एंड ही वाज लाइक मेरा बच्चा अगर स्पोर्ट्स में कुछ कर सके आई विल कंप्लीटली सपोर्ट हर। उन्होंने कभी नहीं बोला कि पैसे की कमी आ रही है, तुझे रैकेट लेके नहीं दूंगा, शू लेके नहीं दूंगा। हमेशा मुझे सपोर्ट किया। बचपन में कभी कभी रैकेट में ऑटो में भूल जाती थी या बस में भूल जाती थी, नींद आ जाती थी। मतलब आई एम ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर अप एंड डाउन, 4 बजे उठना पड़ता था मुझे, फिर स्कूल जाना पड़ता था, फिर 3 बजे मम्मी आती थी, मुझे फिर लेके जाती थी 25 किलोमीटर स्टेडियम, फिर रात में हम आते थे 8-9 बजे वापस घर में। तो ऐसे 3-4 साल चलते रहा जब तक मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आ गई। मैं 12 साल की थी जब मैं पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला। तब मैंने पापा से रिक्वेस्ट किया, पापा घर थोड़ा पास ले लो स्टेडियम के, ताकि थोड़ा आधा घंटा और मैं सो सकूं। और उस टाइम पे फिजियो नहीं थे, ट्रेनर्स नहीं थे जो ध्यान दे सके बॉडी के ऊपर। तो मेरी फिजियो भी मम्मी थी, ट्रेनर भी मम्मी थी, बेचारी पूरी रात बैठ के मेरी मसाज करती थी ताकि मैं अगले दिन अच्छे खेल सकूं। हमें तो एक ही दिन ब्रेक मिलता था संडे, और उस दिन भी मैं 12 बजे सो के रहती थी। पूरा हफ्ता इतना ट्रेनिंग हो जाता था 11 घंटे का। और मम्मी इतनी जालिम थी कि उन्होंने संडे भी मुझे ट्रेनिंग करने के लिए भेजा कि तुम ट्रेन कर, क्योंकि तुझे चाइना को हराना है, चाइना को कैसे हराओगे। और मुझे लगता है मेरी मम्मी मेरी दुश्मन है, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मैंने फेल्प्स का पढ़ा, उसेन बोल्ट का पढ़ा, तो वो बोलते थे कि हमने संडे में ट्रेनिंग करी 8 घंटे ताकि हम 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सके। तो मैंने कहा मम्मी गलत नहीं थी। आपके लिए एक क्विज है, आर यू रेडी? और उस क्विज के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है। मैं इस कॉर्नर में इधर इसलिए हूँ क्योंकि से मैं मैक्सिमम आपको देख सकती हूँ, बारिंग 1 और 2 रोज। ओके, ये टीचर्स के लिए है। सभी प्रिंसिपल्स टीचर्स होते हैं ना। The Sanskrit word for teacher are based on their unique abilities. अध्यापक कौन होता है? अध्यापक is the teacher who provides what? अध्यापक provides what? आपसे पूछ रही हूँ। अध्यापक provides information. अध्यापक जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। उपाध्याय कौन है? उपाध्याय वो होते हैं जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सो अध्यापक जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं एंड में आपसे पूछूंगी आप कौन है? यू विल टेल मी हु आर यू। अध्यापक गिव्स इंफॉर्मेशन। उपाध्याय means the person who imparts knowledge
and information. उपाध्याय, आचार्य कौन है? सिर्फ इतने सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। आचार्य इज द वन हु इम्पार्ट्स स्किल्स। ये हमारे आचार्य, कितना जिक्र है ना आचार्य शब्द का हमारे ग्रंथों में, हमारे स्पिरिचुअल बुक्स में। आचार्य वो होते हैं हु इम्पार्ट्स स्किल्स। पंडित कौन होते हैं? पंडित इज अ पर्सन हु हैज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ही इज अ पंडित ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स he has deep knowledge of the subject. तभी हम कहते हैं पंडित। असली पंडितों को बुलाओ, शादियों में किसको बुलाते हैं? आचार्य को बुलाते हैं, अध्यापक उपाध्याय को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? और they have deep knowledge of the subject. Quiet please, quiet please, quiet. दृष्टा कौन है? These are Sanskrit words but very good words. Drishta is the person who teaches you to think with a visionary perspective on a subject. Drishta, दृष्टि से शब्द है, तो वो दृष्टा कहते हैं, विजनरीज कहते हैं, जो क्या करते हैं? Who teaches you to think with a visionary perspective on the subject. जैसे आपने साइना को बोला, सुना, उससे बोल रही थी कि मैं she was दृष्टि ऑलरेडी, जो कह रही थी मैं तो ओलंपिक चैंपियन बनूंगी, मैं तो वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी। She was already a दृष्टा for her own self. So दृष्टा, ये गुण होते हैं बच्चों में जो जन्म से भी आते हैं, माँ बाप से भी आते हैं, संस्कारों से भी आते हैं। और उसके बाद गुरु कौन है? हम कहते हैं मेरे गुरु जी, उनको ये नहीं कहते मेरे आचार्य हैं या उपाध्याय हैं या मेरे पंडित जी हैं। पंडित जी होते हैं, पंडित भी होते हैं, लेकिन वो गुरु, उनको गुरु कहते हैं। कौन? Guru is the one who can awaken wisdom in you and guide you from darkness to light. इसी कहते हैं गुरु means अंधेरा दूर करना। गुरु means light लाना, अंधेरे को दूर करना। Guru is the one who can awaken wisdom in you and guide you from darkness to light. Perhaps Sanskrit is the only language with such a refined vocabulary that distinguishes different kinds of teachers. अब आप में से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अध्यापक कौन है? अध्यापक आप में से कौन है जो इंफॉर्मेशन देते हैं? उपाध्याय कौन है जो कि नॉलेज भी देते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं? आचार्य कौन है? इज द वन हु इम्पार्ट्स स्किल्स। पंडित कौन है? जो कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है। दृष्टा कौन है? जिससे टीचर्स यू टू थिंक विजनरी। गुरु कौन है? जो अंधेरा दूर करते हैं, awaken the wisdom in you and guide you from darkness to light. आप कौन हैं? आप सब कौन हैं? ये समझ के जाना, ये आज समझ के जाना कि आप सब गुरु हैं। और गुरु क्या करता है? जीवन का परिवर्तन करता है। जब मेरे गुरु मिल गए, मुझे रास्ता मिल गया। जैसे इसको कोचेस मिले, टेनिस कोचेस मिले, इसके माँ बाप भी, साइना के माँ बाप भी गुरु थे, गुरु थे। आप में से कितनों ने साइना की बायोपिक फिल्म देखी? कितनों ने? हर बच्चे को देखी। आज आप जाओगे स्कूल में, साइना की फिल्म को देखना, ये नेटफ्लिक्स में है। और जब आप फिल्म देखोगे तब आप चाहोगे इसकी मम्मी को सुनो। जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ इनका, जबरदस्त एक्सीडेंट, और इसने मैच खेलना था, इस बेटी ने मैच खेलना था, और जबरदस्त अभी रो भी रही है, अब कर भी रही कि मैं मम्मी को कैसे छोड़ के जाऊं, लेकिन जबरदस्त इनका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटलाइजेशन हुई। ये तो भी खेलने गई, तो भी। साइना कह रही मम्मी ने ही कहा था चली जाओ। ऐसे होते, ये होते गुरु, दे अवेकन। सो आपके सामने आज जगदीश जी ने और मधु जी ने एक्चुअली दो ऐसे लोग लाए हैं जो ऐसे ही गुरु के जीवन में आए हैं। हम लोगों के भी माँ बाप गुरु थे और हैं, मेरे माँ बाप भी गुरु ही थे। मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, गुरु ढूंढने की। मेरी माँ गुरु और मेरा बाप गुरु, पिता गुरु, मेरी माँ गुरु, और उन्हीं का काम छूने छोटी उम्र से सीखा और उनसे आशीर्वाद लेना। जिनको माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है उनको
कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं। और जब उनको माँ बाप को गुरु मिल जाता है उनका आशीर्वाद, और फिर उससे बाहर भी मिल जाता है। अगर उसको बाहर भी मिल गया, आप जैसे टीचर्स, आप जैसे गुरु, और कैसे, तो याद रखना आप में केवल अध्यापक नहीं है, आप केवल उपाध्याय नहीं है, आप केवल आचार्य नहीं है, आप केवल पंडित भी नहीं है, आप केवल दृष्टा भी नहीं है, आप सब जिले प्रिंसिपल्स गुरु अपने अपने बच्चों के। जैसे ये दोनों जिले जगदीश जी और मधु भी गुरु बन रहे हैं। ये गुरु क्या कर रहे हैं? ये मेरिट क्रिएट कर रहे हैं इस देश में, बट छोटी उम्र में इनको मेरिटोरियस बना रहे हैं, स्कॉलरशिप होल्डर बना रहे हैं, ताकि वो बच्चे उनका आधार बना रहे हैं। कहा जाता है कि अगर बिल्डिंग को देखना है, कितनी सुंदर बिल्डिंग, नहीं, उसका ये देखो उसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग। बच्चे का सुंदरता का नहीं बात, बच्चे ने कितने कपड़े कौन से पहने ये नहीं, उसकी फाउंडेशन देखो। और आजकल के इंटरव्यूज में लोग एक फाउंडेशन ढूंढते हैं। आपको पता है कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से टीचर्स थे, कौन से सब्जेक्ट्स थे, कहाँ तुमने, किसने पढ़ाया, किसने सिखाया, तुम गेम्स में कौन से गुरु थे, हु वाज योर कोच, दैट इज द फाउंडेशन। जब न्यू रिक्रूटमेंट आपके बच्चों करेंगे, आप लोगों का नाम आएगा इंटरव्यू में, आप लोगों का नाम आपके बच्चे लेंगे, माँ बाप लेंगे, बच्चे बच्चों का अपने माँ बाप का नाम लेंगे, स्कूल का नाम लेंगे, टीचर का नाम लेंगे, पेरेंट्स का नाम लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग यही करते आए। जैसे साइना ने भी बताया आपको कि she owed everything to her coach and her parents. Then होता क्या है कि ये कोच और पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना देते, एक जीवन बना देते। और जीवन क्या होता है, जब जीवन बना देते हैं तो जीवन भर आप उनके साथ चलते रहते हैं, उनकी आत्मा बन के, उनकी ताकत बन के, उनकी ऊर्जा बन के, उनकी सोच बन के, उनका चरित्र बन के। और हम लोग सब धन्यवाद करते हैं जगदीश जी का और मधुमिता का कि उन्होंने कितना जबरदस्त एक ऐसी सोच बनाई, कमाल की सोच है। ये ओलंपियाड का सोच कमाल की है, छोटे से बच्चों की। मैं ये देख रही हूँ कि साउथ इसका बेनिफिट ज्यादा ले रहा है, सारे साउथ इंडियन जो तकरीबन साउथ के बच्चे निकल के कैसे आ रहे हैं, इनकी थिंकिंग की वजह से, विजनरी होने के। और ये हस्बैंड वाइफ टीम रिमार्केबल विद इट। मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ जगदीश एंड योर टीम, ऑल ऑफ यू, दैट द वे यू आर ऑल वर्किंग। Let us begin with the student prize distribution ceremony. Our young achievers have put in immense hard work and dedication to excel in the Indian Talent Olympiad 24-25, and it's time to celebrate their remarkable achievements. I kindly request our dignitaries to present the awards to these bright minds as the names are announced. The National Award 1 goes to Panchal Yadnai. I please request Panchal Yadnai to be on stage.
मेरी नज़र में एक रेवोल्यूशन है, बहुत रेवोल्यूशन है, एंड ये अहेड ऑफ इट्स टाइम है। इसकी हर बच्चे को ज़रूरत है, हर स्कूल को ज़रूरत है, क्योंकि ये अर्ली एज में बच्चे का टैलेंट बढ़ाती है और उसको मेरिटोरियस करती है और उसको रिकग्नाइज कराती है और टीचर्स को भी इन्वॉल्व करती है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को भी इन्वॉल्व करती है। सो बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट है और ये ज़बरदस्त यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। It's a wonderful use of technology tools to provide this kind of meritorious education and also updated. उनका सारा चीज़ें updated है. So this is a very big revolutionary movement. This can go truly national and even international. It is such a good movement, but it's meeting the needs of the Indian children. I'm very happy that Jagdish and Madhumita together have set up this talent and Olympiad. It's very, very good. It's an excellent movement. It's a national movement. It can spread even more into. I see it very much a lot in southern India and in the areas of Gujarat, Maharashtra, and elsewhere. But it can also spread more into northern India also. I would like to congratulate Jagdish sir and Madhumita ma'am जिन्होंने ये event conduct किया, and congratulations जो principals हैं यहाँ पे जिनको award मिला और जो बच्चे हैं जिनको award मिला। मैं यही प्रे करूँगी कि आने वाली जनरेशन है वो अच्छी तरह से हार्डवर्क करे और पढ़ाई करे और स्पोर्ट्स में भी आए, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको और वो फिज़िकली आपको स्ट्रांग बनाता है। एंड आई एम श्योर फ्यूचर में जो जनरेशन है वो स्पोर्ट्स के साथ साथ हर एक फील्ड में बेस्ट करेंगे, टॉप पे रहेंगे। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड होप टू कम बैक हियर सून। एंड बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके। थैंक यू।